بہت خوبصورت بنایا ہے. اور اس کائنات میں ایک ذات ایسی ہے کہ اگر وہ مرد کے شانے پر ہاتھ رکھ دیتی ہے تو انسان بہتے ہوئے انگاروں سے گزر جاتا ہے. یہی عورت اگر فاطمہ کی کنیز بن جاتی ہے تو سب کی حدوں کو پار کر جاتی ہے. یہی عورت اگر اپنی پاکی اور طہارت کو قائم کر لیتی ہے تو مریم کی داسی بن جاتی ہے. یہی عورت اگر صبر کرتی ہوئی اور صبر کے حدوں کو پار کر جاتی ہے تو یہی عورت جناب زینب کی کنیز بن جاتی ہے. آئیے حضرات، یہی عورت جب سماج کے ماحول کو دیکھتی ہے اور سماج کے اس ماحول کا مشاہدہ کرتی ہے اور اس مشاہدے کو اپنی شاعری میں ڈالتی ہے تو اس شاعری کے حوالے سے آپ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر گفتگو کرنے کا جب انداز آپ کے سامنے پیش کرتی ہے تو یہی عورت اپنے آنچل کو پرچم بنا لیتی ہے. مجاز مدولوی نے کہا تھا تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن تو اس آنچل کا ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا. اپنے آنچل کو پرچم بنا کر اور میدان ادب میں گفتگو کرنے کا ہنر ملک کی مشہور و معروف شاعرہ محترمہ انا دہلوی صاحبہ کو آتا ہے. بڑے ادب سے گزارش کر رہا ہوں وہ تشریف لائے. آئیے تالیوں سے استقبال کریے محترمہ انا دہلوی دے رہے ہیں. کاوش میں آپ لوگوں سے اس طریقے سے سلام کا جواب مانگا مجھے لگ رہا تھا داد مانگ رہا اور آپ اتنے بھولے لوگ ہیں کہ آپ نے اسی طریقے سے اس کو جواب دیا. یہ اچھی بات ہے. پر میں پہلی مرتبہ شاید آپ کے بیچ آئی ہوں. آدھی دنیا گھومنے کے بعد 5 کتابیں میری آ چکی ہیں مگر پہلی بار یہاں آنے کا پتہ نہیں میری قسمت میں شاید اللہ کی مرضی اور یہاں کی بزرگ کا شاید حکم اب ہوا مجھے یہاں بلانے کا، اس لیے آپ کی سرزمین پہ آنے کے لیے موقع ملا. شاید مشاعرہ بھی آپ کے یہاں یہ پہلی بار ہو رہا ہے. پہلے نعتیہ مشاعرہ ہوتا تھا، دوسری بار ہو رہا ہے. تو بڑی احسان مند ہوں کہ اعظم خان صاحب نے مجھے یاد رکھا، مجھے بلایا اور تنویر میرا چھوٹا بھائی اس مشاعرے میں بڑا حکم دیا مجھے کہ انا آپا آپ کو آنا ہے کچھ بھی ہو جائے. میری طبیعت واقعی میں اس قابل نہیں تھی میں یہاں آ سکتی مگر شاید یہاں کے بزرگوں کے حوالے سے یا اعظم خان بھائی کی کے حکم میں جو انہوں نے کہا کہ نہیں انا آپ کو آنا ہی آنا ہے. اور تنویر نے کہا کہ چاہے آپ بیٹھ ہی رہیے گا مگر آپ آ جائیے ہمارے مشاعرے میں. تو میں ان لوگوں کے جذبے کو سلام کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں بلایا. اب میں بھی کچھ آپ سب کو سناتی ہوں. میرے پاس کچھ ایسا تو نہیں، میرے بھائی نے چھوٹے بوکھر نے آپ کو بہت کچھ ہنسایا، نہ میں آپ کو ہنسا سکتی ہوں نہ چیخ چلا سکتی ہوں. بہت نازک سی شاعرہ ہوں. یہ ڈائز پر ہمارے مہمان خصوصی صدر محترم اور بہت ہی محترم قابل احترام دنیا ادب کا بہت بڑا نام حبیب ہاشمی صاحب کا میں ان سے دعائیں چاہتی ہوں اور صدر محترم سے اجازت چاہتی ہوں. آواز تو کم نہیں کر رہی ہے مگر کوشش کروں گی کہ اگر آپ نے مجھے حوصلہ دے دیا، مجھے بس غلط فہمی کرا دینا کہ میں بھی آپ کے بیچ پہلے بھی کبھی آ چکی ہوں، پہلی بار نہیں آئی ہوں، کئی بار آ چکی ہوں. اگر مجھے ایسا احساس کرائیں گے تو میں پڑھ پاؤں گی، مجھے حوصلہ ملے گا. پہلی بار پڑھنے کی جسارت کری، ایک بار تالی بجا کر مجھے بھی حوصلہ دے دیں. حالانکہ تالی مانگنا مشاعرے کی روایت نہیں ہے مگر مجھے مجبوراً اس لیے تالیاں مانگنی پڑی کہ میرے میں حوصلہ نہیں ہے. آپ کا یہی حوصلہ میرے ساتھ کام کر جائے. میرے چھوٹے بھائی پیچھے بہت سارے بیٹھے ہیں، کس کا نام لوں؟ اگر نام لوں گی تو پورا مشاعرہ صبح تک ایسے ہی ختم ہو جائے گا. ناظرین مشاعرہ بہت خوبصورت مشاعرہ چلا رہے ہیں. مطلب سماعت کیجیے گا. ہر لفظ کو خوشبو دے، مصروں کو کنول کر دے. ہر لفظ کو خوشبو دے، مصروں کو کنول کر دے. اس طرح سجا مجھ کو غالب کی غزل کر دے. اس طرح سجا مجھ کو. مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ اکبر پور میں بہت اچھی شاعری سنی جاتی ہے اور بڑی خاموشی سے بھی اگر سنی جائے تو مجھے لگتا ہے کہ کسی کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو جائے شعر سے تو میرا شعر کامیاب ہے. بس میں آپ کی دعائیں چاہتی ہوں. ہر لفظ کو خوشبو دے، مصروں کو کنول کر دے. اس طرح سجا مجھ کو
गालिब की गजल कर दे, मुझसे है मोहब्बत तो तू शाहे जहां बन जा। मुझसे है मोहब्बत तो तू शाहे जहां बन जा, मुमताज बना मुझको और ताज महल कर दे। भाई क्या कहने, मुमताज बना मुझको क्या कहने, और ताज महल कर दे। और एक शेर उसमें बड़ा खूबसूरत सा आ रहा है, दिल तो कर रहा है कि नज्म कर दूं मगर नहीं करूंगी, शायद एक नाम भी नहीं लूंगी। वो शेर वहीं पहुंचा दूंगी, आप लोग जहीन लोग हैं, सुनिएगा कि दुश्मनीदा निगाहों से क्यों देखता रहता है, दुश्मनीदा निगाहों से क्यों देखता रहता है, सूफी है तो आ मुझ पर कुछ पढ़ के अमल कर दे। भाई क्या कहने, दुश्मनीदा निगाहों से क्यों देखता रहता है, सूफी है तो आ मुझ पर कुछ पढ़ के अमल कर दे। और रिजवान रियाजी साहब जो है अभी यहाँ तकरीर करके गए हैं, मैं कुछ कहूँगी नहीं उनके बारे में, बहुत अच्छी तकरीर कर रहे थे। ये कौमी यकजहती का मुशायरा और उर्दू के हवाले से खासतौर पर मैं 4 मिसरें पढ़ना चाहती हूँ, कोशिश करती हूँ शायद तरन्नुम निकल सके मेरी जबान से। आप हौसला देना, मैं पढ़ूँ तरन्नुम से। बहुत शुक्रिया। लफ्ज़ कागज़ पे सजाएंगे सजाने वाले, या अल्लाह खैर। लफ्ज़ कागज़ पे सजाएंगे सजाने वाले, सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले, क्या कहने, सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले। ऐ अल्लाह कौन मिटा सकता है तहज़ीब गज़ल, ऐ अल्लाह कौन मिटा सकता है तहज़ीब गज़ल, जब तलक जिंदा है गालिब के घराने वाले। क्या कहने, भाई क्या कहने, जब तलक जिंदा है गालिब के घराने वाले। और मेरे ख्याल में ये नौजवान तबका बड़ी तादाद में बैठा है। अब बुजुर्ग तो मुझे लगता है ये बुजुर्ग होते नहीं हैं, ये तुम गलत है, मुझे तो लगता है होते ही नहीं। और तुम भी इस उम्र में आओगे तब भी बुजुर्ग नहीं होगी, ऐसी मेरी दुआ है। और मुझे लगता भी है, सुनिए 4 मिसरे आप लोगों के लिए पढ़ती। ख्वाब आँखों में मोहब्बत के सजाने वाले, ख्वाब आँखों में मोहब्बत के सजाने वाले, अब तो आजा मेरी नींदों को चुराने वाले, अब तो आजा मेरी नींदों को चुराने वाले। मैं तेरे नाम की तस्बीह पढ़ा करती हूँ, मैं तेरे नाम की तस्बीह पढ़ा करती हूँ, मुझको दीवार समझते हैं जमाने वाले। क्या कहने, मुझको दीवार समझते हैं जमाने वाले। और जैसे कौमी यकजहती का मुशायरा है, 4 मिसरे पढ़ के देखती हूँ। मैं अभी कुछ अरसे पहले पाकिस्तान में थी, और ये अक्सर करके नाज़िम मुशायरा जो है वो ये बता देता है कि ये शायर जो है 10 देश घूमने आया है, 20 देश घूमने आया है, 40 देश घूमने आया है। उसकी मजबूरी होती है, वो अक्सर सारी रात झूठ बोलने का उसका काम भी होता है। क्या करें, मजबूरी में उसको कई लोगों के लिए ये झूठ बोलना पड़ता है। मगर सच्ची बात यह है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने आधी दुनिया घूम रखी है। मैं अमेरिका, लंदन सब कहीं जा चुकी हूँ।
पाकिस्तान में मैंने जाके जो महसूस किया वो जरूर आपको ये बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान वाले आज यहाँ से हिंदुस्तान से महाजरीन गए हुए जिन्हें आज भी महाजिर कहा जाता है, वो आज भी हिंदुस्तान आना चाहते हैं, हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, इस सरजमीन को देखना चाहते हैं, मगर बड़े बदकिस्मत हैं, वो यहाँ ना रह सकते हैं, ना आ सकते हैं, ना मतलब इसको जो महसूस करना चाहते थे वो रह नहीं सकते। सच्ची बात तो यह है कि जो मुसलमान भाई हिंदुस्तान छोड़ के नहीं गए वही सबसे ज्यादा खुशकिस्मत थे, क्योंकि हिंदुस्तान जैसा पूरी दुनिया में मैंने देखा ही नहीं, होगा भी नहीं, और शायद आने वाली वक्तों तक भी हिंदुस्तान जैसा देश होगा ही नहीं। 4 दूसरे बच्चों की शिकारी हूँ, आप सबकी दुआएं मिल जाए, मैं पढ़ती सुनेगा। किसी भी तरह मेरा न छूटेगा, किसी भी तरह मेरा शायरी की बात है, बिल्कुल नाम लेने की जरूरत नहीं है। कितने सारे लोग मतलब नाम लेते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि मुट्ठी भर लोग हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, जहाँ पर ओझा जी बैठे हों और आप जैसे लोग बैठे, ये सद हो यहाँ पर, तो हमारा कोई हिंदुस्तान का बिगाड़ सकता है कुछ? हमारी कम या ज्यादा का कुछ नहीं हो सकता। हम हिंदू मुस्लिम एक थे, एक है, एक है। किसी भी तरह मेरा न छूटेगा, तुम्हारे चाहने से गुलसिता न छूटेगा, वतन से अपने तन मन से प्यार नहीं हूँ, वतन से अपने तन मन से प्यार करती हूँ, मैं मर भी जाऊं तो हिंदुस्ता न छूटेगा, मैं मर भी जाऊं तो हिंदुस्ता न छूटेगा। हमारे बीच मैं तो नहीं पहचानती, मगर कोई प्रधान साहब आए हैं और मैं यहाँ खड़ी हूँ, वो तस्वीर पता नहीं किसकी बना रहे, मैं ये चाहती हूँ कि वो उनकी सोच से हमारी तरफ से दुआई करते, शायद मैं आपको सही पहचान गई। ये दो में से कौन से हैं मुझे नहीं पता। ये असरार प्रधान साहब जो पूरे बैठे हुए हैं, ये आजमगढ़ से तशरीफ लाए हैं। आजमगढ़ वाले ऐसी हरकत कर सकते कोई पूरी दुनिया में पाए जाते हैं जैसे आलू पाया जाता है, वो बड़े मशहूर में जहाँ कहीं वहाँ, ये तो हुआ ही नहीं कि आजमगढ़ का आदमी ना हो, ये बड़ी बात है। उस मतलब वहाँ पर इतने पढ़े लिखे लोग पढ़ के निकलते हैं कि हर जगह, शायद इसीलिए वो हर जगह पाए जाते हैं। 4 दूसरे और पढ़ती सुनेगा। ओझा जी आपको समर्पित करती हूँ और आप तक पहुँचाती हूँ। किसी काबिल हो तो आखिरी लाइन पर, आखिरी मिसरे पर दोनों हाथ उठाकर, मैं किसी पे ताली बजाने के लिए नहीं कहूँगी, मगर उसके लिए जरूर बजा देना जिसके लिए मैंने कहा। सुनेगा। हिरंदीना सुमंदीना चमंदीना नदंदीना, हिरंदीना सुमंदीना चमंदीना नदंदीना, वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना। क्या कहने भाई, वाह। अनादिल में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, अनादिल में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, अगर मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना। भाई क्या कहने, वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे कुछ छोटे भाई डाइस पर बैठे हैं पीछे, जब कागज पढ़ रहा था तो वो उसके मजे ले रहे थे, और अब बहन पढ़ रही है तो पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं या नहीं। मैं चाहती हूँ कि बोखल हो, हाशिम है मेरा भाई, कई भाई हैं कागज आ गए हैं, लेकिन सब ये भी मेरे से जुड़ सकते हैं। गजल सुनाऊँ या कहाँ से शुरुआत करूँ मुझे नहीं पता।
बबलू भाई, आपने बड़ी मतलब हमारी मेहमान नवाजी की है। हम आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे जरूर। आपने गीत के लिए हुक्म किया है, गीत सुनाएंगे। मुझे उससे पहले अगर इजाजत दे तो गजल सुना, क्योंकि ये जायज की जरूरत भी है। मेरा बेटा मतलब पढ़ती हूँ सुनेगा, समाज करेगा। और मेरे ख्याल में जो हमारी बहनें बैठी हैं, इनकी भी जिम्मेदारी बनती है। बड़ी तादाद में बैठी है, अच्छा लग रहा है मुझे, तो वो लोग भी दाद दे सकती हैं। खास तौर पर मुझे तो जरूरी दें, क्योंकि मैं आपकी पैरवी कर रही हूँ। सुने मतलब सुनाते हैं। दिल के कागज को सजाने बड़ी देर लगी, दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर, दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर लगी, दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर लगी, दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर लगी, तेरी तस्वीर बनाने में बड़ी देर लगी। क्या कहने बाबा, तेरी तस्वीर बनाने में बड़ी देर लगी। बहुत अच्छा किया। हालांकि इसके मतलब पे दाद नहीं, क्योंकि आपने बहुत अच्छी दाद दे दी। अब इस शेर पे देखते हैं कौन काम कर सकता है। अब किसी और के हाथों का मुकद्दर अब किसी और अब किसी और के हाथों का मुकद्दर अब किसी और के हाथों का मुकद्दर हूँ मैं, तुझको परदेस से आने में बड़ी देर लगी। नहीं क्या कहने बाबा बाबा बाबा, नहीं क्या कहने बाबा बाबा, तुझको परदेस से आने में बड़ी देर लगी। आप लोग की दाद ज्यादा इसलिए चाहिए कि ये अकेले थक जाएंगे, सारा लोड इन्हीं पे पड़ेगा, है ना। इसलिए शेर बता रहे खास आप तक पहुंचा दो। दिल की शाखों में तेरी याद बनी बैठी थी, समझ, दिल की शाखों में तेरी याद बनी बैठी थी, दिल की शाखों में तेरी याद बने बैठे थे, उन परिंदों को उड़ाने में बड़ी देर लगी। क्या कहने बाबा बाबा, क्या कहने भाई बाबा, उन परिंदों को उड़ाने में बड़ी देर लगी। और डाइट में खड़ी हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है ये शेर अपनी बहनों को रद्द करना चाहती हूँ। शेर अच्छा लग रहा है तो आप सबकी दुआएं मेरे सुनेगा। डाइट पर भी मेरी बहनें बैठी हैं, नूरी बैठी है, नशर बैठी है, चांदी बैठी है। सुने, तकती रहती हूँ मैं दीवाने चेहरा अपना, तकती रहती हूँ मैं दीवाने चेहरा अपना, तकती रहती हूँ मैं दीवाने चेहरा अपना, तुमको आईना लगाने में बड़ी देर लगी। नहीं क्या कहने बाबा बाबा बाबा, बहुत क्या कहने बाबा बाबा, बहुत शुक्रिया। तुमको आईना लगाने में बड़ी देर लगी। बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं, मगर इसमें गजल का आखिरी शेर आपकी समातों के हवाले करना चाहती हूँ और बताने का दिल कर रहा है इस शेर में। हालांकि मजबूरन आप सही है, मगर मेरा दिल कर रहा है कि मैं बताऊं, जब छोटी उम्र में किसी लड़की को इश्क हो जाता है तो माँ से छुपकर कैसे इश्क करती है। सुनिए, आज तो सकते नजर ही नहीं आया सूरज, आज तो सकते नजर ही नहीं आया सूरज, आज तो सकते नजर ही नहीं आया सूरज, आज फिर पाँव सुखाने में बड़ी देर लगी। क्या कहने बाबा बाबा, आज फिर क्या कहने बाबा बाबा, क्या कहने बाबा, क्या कहने
मोहतरमा अना देवी है, फिर तवील है। आइए मोहतरमा अना देवी साहिबा पानी पी रही है, लेकिन आपकी मोहब्बत का ये इम्तिहान भी ले रही है। देखिए मोहतरमा अना देवी साहिबा पानी पीने के बाद फिर आपसे रूबरू हो रही है। अपना इस डर के बारे में तो नहीं पढ़ पाई कि नहीं पढ़ पाई, तो हो सकता है यहीं से वापस जाना भी पड़े। और आजम साहब पता नहीं क्या सोचे, उन्होंने मुझे हुक्म तो दे दिया, बुला तो लिया कि आ जाओ बैठी रहना, मगर मुझे अफसोस होता अगर मैं आपको शेर न सुना सकती, क्योंकि जब किसी मुशायरे में आते हैं तो बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से, बड़ी काविशों से मुशायरा तय किया जाता है, बड़ी मुश्किल से बनाया जाता है मुशायरे को मुशायरा। ये आजम साहब की बड़ी मेहनतें हैं इसमें, और अगर मैं यहाँ शेर सुनाती नहीं और आप जैसे सामने मुझे न मिलते तो मुझे बहुत बुरा सा भी लगता, मगर आज मैं शेर सुनाने का हुक्म मिला है, ये बड़ी बात है। एक मतलब पढ़ती हूँ, मेरे घर में कुछ लोग जाने के मूड में तो नहीं, मतलब इसलिए पढ़ना चाहती हूँ कि गीत के लिए हुक्म दिया है बबलू भाई ने, मैं पढ़ती हूँ। बबलू भाई ने अभी जितनी भी शायरात आई थी उनको सबको आपा कह रखा है, किसी को अपनी, किसी को बाजी, उनकी सबकी बहनें हैं, उनसे पहुँचाती थी। मतलब सुने, मासूम मोहब्बत का बस इतना मसाला है, मासूम मोहब्बत का मासूम मोहब्बत का बस इतना मसाला है, मासूम मोहब्बत का बस इतना मसाला है, कागज की हवेली है, बारिश का जमाना है। क्या कह रहे, वाह 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 वाह, कागज की हवेली है, बारिश का जमाना है। और इसमें मतलब अपने लिए पढ़ते हैं और अच्छा लगता है, तो आप लोग दुआओं से नवाज़ें, लाइफ से दुआएं चाहती सुनिएगा। क्या चलती मोहब्बत है, क्या चलती जमाना है, क्या चलती मोहब्बत है, क्या चलती जमाना है, आवाज भी जख्मी है और गीत गाना है। क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। आवाज भी जख्मी है और गीत गाना है। वाह। यहाँ पार्टी की बात हो रही थी, कोई बात नहीं, इस बार पार्टी नहीं आई तो क्या हुआ, अगली बार तो पक्की है। नहीं वहां तक पहुंचाती हूँ, इसे वहीं पहुंचाए जहाँ पहुंचाना चाहती हूँ। उस पार उतरने की उम्मीद बहुत कम है, वाह, उस पार उतरने की उम्मीद, उस पार उतरने की उम्मीद बहुत कम है, कश्ती भी पुरानी है, तूफान कभी आना है। क्या कहने, वाह 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 वाह, कश्ती भी पुरानी है, तूफान भी आना क्या है। कहने। शायरी के हवाले से शेर पढ़ती हूँ, दाइश से दुआएं चाहती हूँ। आजम साहब अली है और मेरी जगहाल भी अलीगढ़ से ही है, काफी हद तक मेरे यहाँ सब लोग अली हैं। शेर पढ़ती हूँ, समझी कि न समझे वो आंखों की इशारों को, समझे कि न समझे वो आंखों की इशारों, समझे कि न समझे वो आंखों की इशारों को, एक शख्स को आंखों से एक शेर सुनाना है। क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। एक शख्स को आंखों से एक शेर सुनाना है। और अब ये शेर आपकी सरजमीन के नाम और जहाँ खड़ी हुई, सामने आस्ताना नजर आ रहा है मुझे, वहां तक पहुंचाती हो। शेर किसी काबिल हो तो आप तक पहुंचे। ये शहर मोहब्बत है, ये शहर अकीदत है, पता था आपको भी लगता है। ये शहर मोहब्बत है, ये शहर अकीदत है, इस शहर की मिट्टी को आंखों
मुझे अच्छा लग रहा है कि आप खामोशी से सुन रहे हैं, मगर इतनी भी डूब के ना सुने कि डूब जाए। मुझे डर भी लगने लगता है जब लोग खामोश हो जाते हैं तो बड़े खतरनाक लगने लगते हैं। तो मेरा डर निकालो और मुझे सुन के बताओ। मैं मक्का पढ़ती हूँ। तालियों से कम से कम ये तालियां बजा कर मुझे बता दे कि आप लोग शेर भी बने। चलिए मेरी नहीं सही, आपने इनकी बात को मानी, हालांकि मर्द मर्द की बात मान रहा है, ये समझ में नहीं आया मुझे। शेर पढ़ती, शेर क्या ये मक्का इसमें रह गया है, मक्का भी सुना देती हूँ। मक्का जिगर साहब की ये जमीन है, आप जमीन लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों के बीच में शेर पढ़ रही हूँ। तो मक्का जो है वो जिगर की जमीन पे उनके शेर से इस्तेफादा किया है। उनका ये शेर के लिए इश्क नहीं आता, बस इतना समझ लीजिए हिसाब का दरिया है और डूब के जाना है। वहाँ से मक्का का एक अदनासी शायरा ने, अगर किसी काबिल हो और आपको लगे कि मैंने अच्छा कह लिया हो तो आप तक पहुँच जाए तो दुआओं से नवाजे। गाइड से मैं दुआएं चाहती हूँ, हमारे काबिल एहतराम मोहतरम हबीब हाशमी साहब की दुआएं चाहती हूँ। सुनेगा भोली सी अनामाई फिर इश्क की जग पर है, भोली सी अनामाई फिर इश्क की जग पर है, फिर आग का दरिया है, फिर डूब के जाना है, क्या कहने फिर आग का दरिया है, फिर डूब के जाना। क्या कहने। अब मैं जाऊँ आऊँ, उससे अच्छा ये है कि मैं सीधे सीधे आपको गीत सुनाऊँ, और गीत की भी मैं शायद स्वामी एग्जैक्टली का ही सुनाऊँ, वो ज्यादा बेहतर होगा कि आप लोगों के मतलब का सुना। मैं सही बताऊँ, मुझे जो हुक्म हुआ है वो तो स्वामी एग्जैक्टली का लड़की हिंदुस्तानी के लिए हुक्म किया गया है, मगर अगर कहें तो मैं आपको वो गीत भी सुना सकती हूँ। ये नौजवान सबका बैठा है, मैं उनका मेरा छोटा भाई कह रहा है जो आपका दिल है। मेरे ख्याल में महफिल बड़ी खूबसूरत है, मैं खराब ना करूँ तो अच्छा है, वही सुनाती हूँ जो सुनाना चाहिए। और भूख भी है उसका, सुने साथ देना मेरे लिए सुना। बबलू भाई आपकी ज्यादा रास्ता है। तन है वतन की मिट्टी, मन गंगा का पानी, तन मेरे साथ रहना। गीत में मुझे आपकी याद करनी है, गजल में आपने बहुत अच्छे से सुना, मगर खास तौर पे आपकी गीत पे तालियां चाहिए मुझे एक बार महसूस करा दें कि आप गीत सुन रहे हैं। एक बार ताली बजाई दें आप, बहुत और आप लोग भी बजाएं, इसलिए कि आप आपके लिए गीत पढ़ेंगे हुए लड़कियों तक पहुँच जाए। तन है वतन की मिट्टी, मन गंगा का पानी, तन है वतन की मिट्टी, मन गंगा का पानी, जान मत पूछो मैं लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी। ऐसा लग रहा है कि मैं कब्रिस्तान में मर्सिया सुना गीत नहीं, ऐसे मत लो। अच्छा कुछ लोग तो लुढ़क भी गए, शायद मेरे ख्याल में आजम साहब जहाँ मुशायरा नहीं कराते तो उन्हें सोने के लिए जगह कहाँ होती है ये मुझे नहीं पता, मगर आज वो मुशायरा कराए तो कुछ सोने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो वो जाग जाए थे। तन है वतन की मिट्टी, मन गंगा का पानी, तन है वतन की मिट्टी, मन गंगा का पानी, जरा मत पूछो मैं लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी, तन है वतन की मिट्टी, मन गंगा का पानी। और बंद पढ़ती हूँ, बताती हूँ इस बंदे खासतौर पे हिंदुस्तान में लड़की कैसी हो सकती है। हरी फिरोजी धानी नीली पीली लाल गुलाबी, हरी फिरोजी धानी नीली पीली लाल गुलाबी, पकी टमाटर जैसी हूँ मैं एक कुड़ी पंजाबी, हरी फिरोजी धानी नीली पीली लाल गुलाबी, पकी टमाटर
टमाटर जैसी हूँ मैं एक कुड़ी पंजाबी, जो भी आँख मिला ले मुझसे वो हो जाए शराबी। टूटे फूटे हर ताले की रखती हूँ मैं चाबी। क्या कहने मेरी बात, सीधी सादी समझ लेना मैं हूँ बड़ी सयानी। क्या कहने लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी, तन है वतन की मिट्टी, मन गंगा का पानी, जात तरफ मत पूछो मैं लड़की हिंदुस्तानी। ये जब मुखड़ा मैंने कहा था तो एक साहब ने मुझसे पूछा, आना साहिबा आपकी जात क्या है? मैंने वहीं से मुखड़ा कहा। मैंने उन्हें बताया कि हम न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है, हम सबसे पहले हिंदुस्तानी इंसान। अगर वो बन जाए तो फिर तो हमारे सारे इस्लाम तो है ही हमारे। तो वहीं से मुखड़ा कहा, तन है वतन की मिट्टी, मन गंगा का पानी। अब ये बन आपको नज करते और अच्छा लग रहा है तो आप सबकी दुआएं मिले सुने। मैं चांदी की भरी तिजोरी में सोने का गहना, मैं चांदी की भरी तिजोरी में सोने का गहना, जो भी मुझको देखे बोले वहाँ तेरा क्या कहना। क्या कहने मेरी बात, मैंने सीखे हैं जीवन के सारे दुख सुख सहना, मैं माँ भी हूँ पत्नी भी हूँ, मैं बिटिया मैं बहना, मैं रजिया सुल्ताना भी हूँ, मैं झांसी की रानी। क्या कहने मेरी बात, बहुत शुक्रिया। बिना कहे आपने ताली बजा दी, इसका मतलब सही बल से आपने ताली बजाई। तन है वतन की मिट्टी, मन गंगा का पानी, जात तरफ मत पूछो मैं लड़की हिंदुस्तानी। और आखिरी बंद फिर आपसे इजाजत। आखिरी बंद में मैं आपके हिंदुस्तान में क्या क्या मशहूर और क्या क्या फेमस है वो सुनाती हूँ, आप सुने। और आप ही सबसे ज्यादा साथ दे रहे हैं, बाकी तो कुर्सियों पर बैठने की काम ही कर रहे हैं। मैं बस उनकी भी दुआएं चाहती हूँ, अगर मिल जाए तो अच्छा लगेगा मुझे। जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं वो अक्सर करके ये कहा जाता है कि जब कुर्सी मिल जाती है तो जबान अपने आप बंद हो जाती है, मगर मैं चाहती हूँ कि उनकी जबानें खुल जाए। वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी जबानें ज्यादा खुल जाए। सुने। मेरे कितने रूप है, मैं हूँ बम्बई दिल्ली वाली, मेरे कितने रूप है, मैं हूँ बम्बई दिल्ली वाली, भोली भाली कश्मीरन हूँ, सजी धजी भोपाली, हरियाणा के खेतों में गेहूं की सुनहरी बाली, गुजराती नमकीन हूँ या मैं रसगुल्ला बंगाली। अच्छा, इतनी देर बाद आपने ताली बजाई, रसगुल्ला ही समझ में आया और कुछ नहीं आया। बहुत शुक्रिया। मेरे कितने रूप है, मैं हूँ बम्बई दिल्ली वाली, भोली भाली कश्मीरन हूँ, सजी धजी भोपाली, हरियाणा के खेतों में गेहूं की सुनहरी बाली, गुजराती नमकीन हूँ या मैं रसगुल्ला बंगाली, हरी मिर्चियाँ जैसी तीखी राजस्थानी, लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी, तन है वतन की। अब आखिरी टुकड़े में तो मेरा साथ दे दो तालियों के साथ। तन है वतन की मिट्टी, मन गंगा का पानी, तन है वतन की मिट्टी, मन गंगा का पानी, जात तरफ मत पूछो मैं लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी।